welcome you all to today's lecture, and today it will be lecture number 2 for structure of atom. Okay, इससे पहले let me brief you with the packages that are running presently on an offer, that is 9,000 for both junior as well as senior classes. It is a limited time offer, so hurry up and grab the opportunity. Okay, and the students who are already connected with us, उन्हें पता है कि application पर already live classes चल रही हैं for both senior and junior classes. Okay, that is from KG to 12th. Okay, चलो. And at the same time, the usual price is 30,000 as you can see, but after you use the coupon code, that is Pradis 2025, you will get a handsome discount and it will land to 9,000, just 9,000, and in such a affordable amount you can access all of these things, that is classroom videos, 3D videos, lecture videos, we have smart board videos, recent live lectures. In case you have missed attending your class, you can attend it later on also, but don't think कि live class तो attend कर ली, but अब doubts कैसे solve होंगे, तो उसके लिए भी कोई issue नहीं है. You have a doubt session as well, separately timed. We have content free solution, practice test on the application, worksheet that you can solve, daily practice worksheet after every topic. It is sorted for you topic wise. So many, all of these things on just one platform. Isn't that amazing? Yes, chalo. And just like this particular data, your NEET course also has access to application, that is आप जितना भी YouTube पर पढ़ रहे हो, worksheets, related worksheets जो हैं वो application से आप access कर सकते हैं easily and you can solve them as well. चलो, और worksheets के अलावा we have previous year papers as well जो कि you can solve to boost up your performance. You know what is the importance of previous year questions. Yes, चलो. Followed by that you have 11th grade timings for physics, chemistry and biology classes. As you can see, physics we have at 6 p.m. on Wednesday, 4 p.m. on Thursday and 6 p.m. on Saturday again. Chemistry classes are on Monday and Tuesday at sharp 3 p.m. live on YouTube, and chemistry on Friday at 5. Okay, ठीक है. For biology classes you have on Wednesday, Friday and Saturday at 3 p.m. Yes. So take these timings very, very seriously so that you don't miss out on any of the lectures. Okay, chalo. Now we will start with structure of atom and it is lecture number 2 today. Okay, चलो. Last class में हमने कुछ basic बातें की थी और कुछ DPQ solve किए थे related to isoelectronic species and number of protons, neutrons. जिस section में से जो targeted question है, we will be solving that in the DPQs. Okay, चलो. Now let us start with a very, very important I would say part of atomic structure, that is the wave nature of electromagnetic radiation. Okay, अब यहाँ से हम particle और wave nature की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे. सबसे पहला है wave nature of electromagnetic radiation. अब आप बोलोगे कि electromagnetic radiation क्या होता है? Okay, तो electromagnetic radiation is nothing but a wave. Okay, and इसको नाम कैसे दिया है electromagnetic radiation? Because इसमें electric and magnetic field just like its name दोनों involved हैं. ठीक है, तो electromagnetic radiations are wave-like radiations. Yes, we will study more about it. See, it is the energy transmitted from one body to another. And what is it? What are these waves? Nothing but energy that are transmitted from one body to another body, but in the form of waves. ठीक है? So that is what is said. And these waves travel in space with the speed same as that of light, जो कि है 3 into 10 to the power 8 meters per second. ठीक है? तो ये एक बहुत important characteristic है हमारे electromagnetic radiations का, कि इनकी स्पीड क्या होती है? सिमिलर टू द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. ध्यान रखना है इस चीज को, ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है, कभी कभी पूछ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स अप्लाई नहीं होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पर बताओ, तो यू शुड नो ऑल ऑफ देम. ठीक है, तो लेट अस डिस्कस देम ऑल.
and these waves are called as electromagnetic waves or radiant energy या radiation, one and the same thing. Now इनमें कौन कौन से आ जाते हैं? देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में we have a whole electromagnetic spectrum. If we talk about that, we have a whole electromagnetic spectrum. तो चलो electromagnetic spectrum एक बार देख लेते हैं. See, it is as follows. See, gamma rays, X rays, UV rays, visible light, infrared, okay, microwaves and radio waves. This is the most common electromagnetic spectrum that we study. Okay, what are these? Gamma, X-ray, ultraviolet, visible, infrared. अब visible भी किस में divided है? 7 parts में, V, I, B, G, Y, O and R. Yes, Vibgyor. Clear है? तो ये हमारा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है. इसकी थोड़ी सी अगर हम बात करते हैं तो देखो कि जब हम रेड तक आते हैं, या वेट, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, दैट इज गामा से अगर रेडियो वेव्स की तरफ जाएंगे तो व्हाट विल हैपन? द वेवलेंथ विल इंक्रीज. व्हाट विल हैपन? वेवलेंथ इंक्रीजेस. And what? Frequency decreases या energy decreases. Frequency और energy decreases. तो यहां से अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल कर आता है. क्या पता चल रहा है कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. मतलब वेवलेंथ अगर बढ़ रही है तो एनर्जी घटेगी. यही समझ आ रहा है ना? इसको हम आगे थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे. आप देख लो, दिस इज द होल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसे आप बोलते हो. और रेडिएशन, व्हाटएवर. ठीक है, आई होप इतना क्लियर है सभी को. ना लेट अस कम बैक टू दिस. देखो, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएंट एनर्जी आर द कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी लाइट, विजिबल लाइट, infrared light, microwaves, TV waves, radio waves. These are all the electromagnetic radiations that are known, and they are made up of electric and magnetic fields that are radiated in perpendicular directions to one another. ठीक है, and इनका direction of propagation कैसा होता है? It is perpendicular to each other. Okay, जो भी electric field vector और magnetic field vector होते हैं, they are perpendicular to each other as well as they are perpendicular to the direction of propagation of wave. ठीक है, like that. चलो, अब electromagnetic radiations have wave characteristics. These are in wave nature. Particle nature हम बाद में पढ़ेंगे photoelectric effect में. इन जो electromagnetic radiations हैं, इनका wave nature होता है as said, and no medium is required for their propagation. कोई भी medium required नहीं है propagation के लिए. They can travel through the vacuum also, that is space. Clear है इतनी बात? I hope इतना clear है. अब see यहाँ पर what we can see is एक electromagnetic wave क्या कर रही है? Oscillate कर रही है. This is a wave, okay? And इसका oscillation हमें देखने मिल रहा है. तो see what is a crest defined as? This distance is crest. And what is this distance? It is trough. इसको आगे भी पढ़ेंगे. And here is the direction of propagation of wave. When we talk about the amplitude, this is the amplitude. Okay? चलो. So an electromagnetic spectrum, जैसा कि हमने अभी देखा, a wave is characterized by following characteristics. एक wave को हम किस तरह से characterize कर सकते हैं? First one is its wavelength. कि wavelength क्या होगी? तो the distance between two neighboring troughs or crests in wave is known as the wavelength. अभी देखा था दो crest क्या है? Like these are the two crest. ये crest है हमारे, the upper ones. Okay. तो ये क्या है? एक crest है. And what is this? Nothing but the wavelength only. And when we are talking about the depression,
डिप्रेशन की अगर बात करते हैं तो डिप्रेशन वाला जो सेक्शन है इसमें जो लेंथ मेजर हो रही है, दिस इज नथिंग बट द वेवलेंथ. ओके, सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू नेबरिंग troughs or the crests in a wave is known as wavelength. Unit of wavelength are meter, centimeter, angstrom, nanometer, millimeter, picometers. Okay, so 1 angstrom is equal to 10 to the power minus 8. 1 angstrom is equal to 10 to the power minus 8 centimeter, or in meters if you want it is 10 to the power minus 10 meters. It is very very important, conversions में बहुत useful होगा. Clear है इतनी बात? चलो. Now frequency, second one जो है, second characteristic wave का है frequency. Frequency is directly proportional to energy. See here, the number of waves which pass through a given point in 1 second. जितनी भी number of waves हैं एक सेकेंड में एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी बार पास कर रही है, वही होता है फ्रीक्वेंसी n. ओके, द यूनिट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आर सेकेंड इनवर्स, इट इज सेकेंड इनवर्स. Okay, cycles per second or hertz. Hertz. These are the two important units. Relation between frequency and wavelength is what? Relation between frequency and wavelength बहुत important है. V is equal to C by lambda. What is actually, this is not V, it is nu. It is equal to C by lambda. This represents nothing but the frequency. Okay, so it is equal to C upon lambda. And what is C here? C is the speed of light and lambda is the wavelength. So this relation, it is an important relation and a very important formula as well. ठीक है, clear है इतनी बात? चलो, तो यहाँ से हमें ये डाटा कलेक्ट करना है. Then we have to know the units of frequency as well and the relation between frequency and the wavelength. ठीक है? I hope this much is clear to all of you. Now comes wave number. Wave number होता है just opposite of the wavelength. Okay, it is termed as reciprocal of wavelength like this. See, wave number is 1 upon lambda, है ना? तो the number of wavelengths per centimeter or the reciprocal of wavelength is called as nothing but the wave number, and its the unit is centimeter inverse or meter inverse. Clear है? Now next है amplitude. As we saw कि अगर एक क्रेस्ट है तो उसमें मैक्सिमम क्रेस्ट किस हाइट तक अटेन हो रहा है, वही होता है एम्पलीट्यूड. फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर कंसिडरिंग एनी वेव, तो ये है भाई इसका एम्पलीट्यूड. ठीक है, दिस इज द एम्पलीट्यूड. द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और द डेप्थ ऑफ द ट्रफ. हाइट क्रेस्ट का या डिप्रेशन ट्रफ का of a wave is called as the amplitude, and amplitude is a measure of intensity or brightness of the beam of light. जितना ज़्यादा I would say एम्पलीट्यूड होगा उतना ज्यादा ब्राइटनेस या उतना ज्यादा इंटेंस होगा लाइट. ठीक है, क्लियर है? नाउ कम्स वेलोसिटी. वेलोसिटी इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव. सी, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव इन 1 second is called its velocity. What is distance? What is speed? Speed is nothing but distance upon time, right? So the distance traveled in per second by the wave is nothing but its velocity. And units of velocity are meter per second and centimeter per second for a wave. All the types of electromagnetic radiations have the same velocity. That is what 3 into 10 to the power 8 meter per second, which is equal to the speed of light or velocity of light. Important है. ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अभी हमने देखे उनकी स्पीड क्या होती है? इट इज इक्विवेलेंट टू द स्पीड ऑफ लाइट. क्लियर? नाउ ओके, कम्स पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. अभी हमने क्या देखा? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. अब हम समझेंगे कि पार्टिकल नेचर किस तरह से होता है. तो इसके लिए पहले हमें थोड़े कुछ पोस्टुलेट समझने होंगे, वो देख लेते हैं. ठीक है, तो some of the experimental phenomena such as diffraction and interference could be explained by the wave nature of light. अब देखो, ऐसा होता है कि अगर हमने एक चीज सर्टिफाई कर दी है, एक चीज क्लेम कर दी है, तो जरूरी नहीं है कि वो सारी ही कंडीशंस मीट करे. जैसे अगर हमने बोल दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो नेचर है वो वेव नेचर है, तो अब जरूरी नहीं है कि वेव नेचर उसका हर चीज में जस्टिफाई हो. यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जस्टिफाई कर रहा था वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लेकिन बाकी कुछ चीजें थी जो कि जस्टिफाई नहीं हो पा रही थी. ठीक है, तब डिस्कवरी हुई कि पार्टिकल नेचर भी होता है. वेव एग्जिबिट्स पार्टिकल नेचर.
sorry, the electromagnetic radiation exhibits particle nature as well. ठीक है, तो समझते हैं. The body that is capable of absorbing all types of radiations and emits completely the absorbed radiations is a black body. Just one point कि what is a black body? Black body क्या होती है? जो सारे ही wavelengths के radiation absorb कर ले and उन्हें emit भी कर दे. ठीक है, तो such a body is a black body. And when a black body is heated, it emits thermal radiations. कोई भी heated object क्या radiate करता है? Thermal energy radiate करता है, heat energy radiate करता है, right? तो when a black body is heated, it emits thermal radiation of different wavelengths or frequencies. अलग अलग wavelength और frequencies के radiations एक black body emit करती है, right? चलो, at a given temperature, the intensity of the radiation increases. एक टेम्परेचर पे जो इंटेंसिटी है रेडिएशन की, इट इंक्रीजेस विद द वेवलेंथ, रीचेस अ मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेस. ओके, नाउ व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस, द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन विल बी मोर टुवर्ड्स द लोअर वेवलेंथ्स. जब टेम्परेचर बढ़ाया है तो ये जो इंटेंसिटी है, इंक्रीज्ड इंटेंसिटी, इट विल बी मोर टुवर्ड्स द लोअर वेवलेंथ्स. देन व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड, दे एमिट रेडिएशन ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ्स. ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं. Now comes Planck's quantum theory. समझते हैं कि क्या है Planck's quantum theory. इसमें सबसे important formula ये होगा जो हम पढ़ेंगे अभी, and this is what concludes the Planck's quantum theory. See, substance absorb or emit lights discontinuously in the form of small packets or bundles. Quantum theory है ना, तो यहाँ से word निकल कर आता है quanta, and quanta is nothing but it is a unit to measure light. Okay, अब what are these? See, क्या बोला है? Smallest packet of energy. What is light? Nothing but energy, right? So the smallest packet of energy is called as nothing but quantum या quanta. Okay, so substances absorb or emit light discontinuously in the form of small packets or bundles. ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई भी substance है वो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है या एमिट कर रहा है, डिसकंटिन्यूअस है ये प्रोसेस, तो इट डज सो in a way कि the light energy is in the form of small packets, ऐसे करके. तो smallest packet of energy is called as nothing but quanta. The radiation is propagated in the form of waves. Energy of the quantum is directly proportional to the frequency of radiation. क्या बात निकल कर आई? Energy जो है, light energy, जो भी हमारी light energy है in the form of quantum, इसकी जो energy है, it is proportional, directly proportional and not even inversely, directly proportional to the frequency of the radiation. ठीक है, ये बात हुई. अब इसके बाद क्या बोलते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हम हटाते हैं तो क्या आ जाता है? एक कांस्टेंट आ जाता है. इट इज इक्वल टू h nu. This is a constant and what is this? It is nothing but Planck's constant. Planck's constant, okay. And इसकी वैल्यू 6.625 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड इट्स वैल्यू. ठीक है, इतनी बात क्लियर है. अब आप देखो न्यू फ्रीक्वेंसी, हमने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का एक रिलेशन पढ़ा था. क्या पढ़ा था? कि न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, है ना. तो यहां से क्या हो जाएगा? h इंटू सी अपॉन लैम्डा. ये हमारा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन निकल कर आता है. बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं. अभी रिसेंटली आई गेस 21 में ही इस पे क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन. चलो, नाउ where E is the energy of radiation, H is the Planck's constant which has this value, and a body that can absorb or emit energy in whole number multiple of a quantum. A body can absorb or emit energy in whole number multiple of quantum is said. मतलब कि ये जो है हमारा, this is in the form of discrete packets. ये जो energy absorb या emit हो रही है, it is in the form of discrete packets. n लगा दोगे तो आ जाएगा, it is a whole number multiple, that is n is equal to 1 2 3 4. so we get this formula. ठीक है, the frequency of emitted radiation goes from lower to higher as the temperature increases. clear है? ये बातें clear है? चलो, now let us move on to photoelectric effect.
अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक एक्सपेरिमेंट था जो कि कंडक्ट किया था टू डेमोन्स्ट्रेट द लाइट टू डेमोन्स्ट्रेट द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो चलो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने किया था? H. Hertz performed the experiment, that is photoelectric effect. Substances absorb or emit light discontinuously in the form of small particles of energy that are called as the packets quanta. Okay, now the energy of a photon is directly proportional to the frequency of radiation. Energy क्या थी? Directly proportional to frequency of radiation थी, यही पढ़ा था हमने भी यही पढ़ा था। एंड जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो इक्वल टू और एक कांस्टेंट आ जाता है। Here is the expression, energy of photon is like this. Now when light is exposed to clean metallic surface, electrons are ejected from the surface. देखो एक ये clean metallic surface ऐसे for example metal है and इस पर हम एक proper intensity की light incident करवा रहे हैं, तो क्या होगा? When light is exposed to a clean metallic surface, electrons are ejected from the surface. What is ejected? The electrons. ठीक है, This phenomena is called as the photoelectric effect. Easy. एक metallic surface लिया, उस पे हमने light incident करवाई। अब ये बहुत specific होगा कि हम कैसी light incident करवा रहे हैं, आगे देखेंगे। ठीक है, तो जब light incident करवाई तो अभी simply इतना समझो कि उससे electrons निकले। metallic surface लिया, light incident करवाई, उसकी वजह से electrons निकले। What is this? Nothing but photoelectric effect. ठीक है, चलो। Now the observation of photoelectric effect were as follows कि electrons are ejected from the metal surface as soon as the beam of light strikes the surface। मतलब कि कोई टाइम लैग नहीं है कि अब ये हमारा मेटल सर्फेस है, इस पे हमने लाइट इंसिडेंट करवाई है एंड देन फिर कुछ टाइम लग रहा है और फिर इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे ही लाइट इंसिडेंट करवाई वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो गए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सर्फेस as soon as the beam of light strikes the surface. That is, there is no time lag between the striking of the light beam and the ejection of electrons from surface. ठीक है, चलो अब ejection of electrons from the surface of a metal by irradiating with light of suitable frequency is preferred. मतलब क्या है कि अगर हम एक optimum frequency of light incident करवाते हैं तभी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होंगे, और इस ऑप्टिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज व्हाट? द थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या बोला है? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ मेटल बाय इरेडिएटिंग इट विद लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इज प्रेफर्ड, राइट? मतलब इसका क्या मतलब निकल कर आता है कि एक मेटालिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स तभी इजेक्ट आउट होंगे जब हम उसे एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट देंगे या ऑप्टिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट देंगे। ठीक है, तो इससे हम क्या इन्फर करते हैं कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है। हर लाइट बीम हम इजेक्ट करवा दें और इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो जाएं, हर लाइट बीम हम इंसिडेंट करवा दें और इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड एज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। Now, a part of the energy of photon which is used to escape the electron from the attractive forces in the remaining energy is used to increase the kinetic energy of the electron. ठीक है, क्या है part of energy of photon? अब देखो यहाँ पर ये जो हमारा metallic surface है इसमें electrons जो थे, ठीक है, light beam incident हुई, एक electron को eject out करवाया, तो ठीक है, इसकी जो लाइट, ये जो इंसिडेंट लाइट है इसकी जो एनर्जी थी ये इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब करी, बहुत ध्यान से समझेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब करी और ये इजेक्ट आउट हुआ। ठीक है, क्या बोला है? अ पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन विच इज यूज्ड टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अट्रैक्टिव फोर्सेस जो यहाँ पर प्रेजेंट है मेटल बल्क में, एंड रिमेनिंग एनर्जी इज यूज्ड टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। बाकी फिर जितनी भी एनर्जी देखो, से फॉर एग्जांपल ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हमारा जो भी इंसिडेंट लाइट है इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को केवल 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर हुई, ठीक है, टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड इजेक्ट आउट। बाकी कितनी बची? 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या करेगी?
वो एनर्जी है ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। ठीक है, अब इजेक्ट आउट हो गया तो उसको मूव भी तो करना है, इजेक्ट आउट करवाना है ना, तो काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो काइनेटिक एनर्जी सप्लाई करती है फिर रिमेनिंग एनर्जी जो भी है। क्लियर है इतनी बात? नाउ सो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन is ejected, total energy is what? It is W plus KE, kinetic energy. And what is this W? It is the work function या जो threshold energy है, minimum energy जो कि लगती है इलेक्ट्रॉन को eject out करवाने में। ठीक है, तो this is given by h nu। देखो एनर्जी क्या होता है, अगर हम एनर्जी की बात करें, it is directly proportional to द फ्रीक्वेंसी, राइट। और अगर मैं इसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल रही हूँ तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाएगी, है ना। थ्रेशोल्ड एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग थ्रेशोल्ड एनर्जी, राइट। तो दिस ई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, एंड न्यू नॉट क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ई नॉट लिखने की जगह हम लिख देते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इज नथिंग बट द मिनिमम एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड, या थ्रेशोल्ड एनर्जी भी हम इसको बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, तो बस वही है एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी जो उसको इजेक्शन के लिए, इजेक्शन के बाद जो उसको स्पीड मिल रही है काइनेटिक एनर्जी, सो दैट इज दिस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो दिस इज E इज इक्वल टू एच न्यू प्लस के ई। क्लियर है इतनी बात? आई होप दिस मच इज क्लियर। इंपॉर्टेंट है ये। इस फॉर्मूला को अगर हम फर्दर डेराइव करेंगे तो वी विल गेट, लेट मी जस्ट चेक इफ इट इज हियर, इफ इट इज नॉट देन आई विल टेल यू। सी E इज इक्वल टू एच न्यू प्लस के। देखो यहाँ पर जो भी एनर्जी थी इनकमिंग लाइट, जो भी इनकमिंग लाइट थी, लाइट एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन को हमें मिलती है, जो इलेक्ट्रॉन है उसको मिलती है इन द फॉर्म ऑफ वर्क फंक्शन जो कि मिनिमम एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, प्लस द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अभी समझा था हमने। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ओके, दैट इज हाफ mv स्क्वायर, है ना, एंड दिस इज E। तो अगर E को हम एच न्यू लिख सकते हैं, वाई कांट वी राइट? कांट वी राइट E इज इक्वल टू एच न्यू? ये तो स्टैंडर्ड है ना, ये मिनिमम कंडीशंस है, थ्रेशोल्ड कंडीशंस है, तो इट इज एच न्यू प्लस हाफ mv स्क्वायर। यस, ऐसे लिख सकते हैं। तो हाफ mv स्क्वायर विल बी, हाफ mv स्क्वायर लिख लो या डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी लिख लो, इट विल बी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ओके, क्लियर है इतनी बात? तो यहां से एक हमारा इक्वेशन ये फ्रेम होता है, इसको चाहो तो आप काइनेटिक एनर्जी ही रहने दो। क्लियर है? चलो अब आगे देखते हैं। In photoelectric effect, the number of photoelectrons that is emitted is proportional to the intensity of incident light. कि कितनी इंटेंसिटी की लाइट इंसिडेंट है तो वो प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मिनिमम एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन, जैसा आई टोल्ड यू। नाउ for each metal there is a characteristic minimum frequency, that is the threshold frequency, below which photoelectric effect is not observed. Okay, so at a frequency nu naught, nu greater than nu naught, the photoelectric effect is observed. It will be like that कि जो हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, ये तो हमारी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, अगर इससे ज्यादा, या तो ये हो, एक तरह से ऐसे कर सकते हैं कि या तो इक्वल हो इसके या फिर इससे ज्यादा हो, जो भी हमारी मिनिमम एनर्जी है या तो उसकी इक्वल हो या फिर उससे ज्यादा हो, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। क्लियर है इतनी बात? चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ वी विल कम टू एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। The spectra that is obtained by the emission of energy by the excited atoms are called the emission spectra. देखो दो तरह के स्पेक्ट्रा होते हैं, एक होता है emission spectra and एक होता है absorption spectra या absorption spectrum। समझते हैं दोनों चीजें? See, the spectra that is obtained by the emission of energy by the excited atoms, जो excited atoms होते हैं, क्या होता है कि say for example ये कोई भी atom है X, ये ground level पर है ना, अब फिर जब ये excite हो जाएगा, अपर लेवल्स पर जाकर के एक्साइट हो जाएगा, तो इसने जाहिर सी बात है कि कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करी होगी, तभी तो ये एक्साइट हुआ है, कुछ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी होगी स्पीशीज ने, तब जाकर के वो एक्साइट हुआ है। बिना एनर्जी के हम थोड़ी कूद फान सकते हैं,
हो सकता है क्या ऐसा पॉसिबल? हमें भी एनर्जी चाहिए ना कूद फान करने के लिए, तो सिमिलरली ये जो हमारा स्पीशीज है इसको भी एनर्जी दी होगी जो इसने एब्जॉर्ब करी होगी, राइट? उसके बाद ये कूद फान कर रहा है, ऊपर एक्साइटेड हो गया, मतलब हायर एनर्जी लेवल पर चला गया। अब जब ये वापस आता है अपने ग्राउंड स्टेट पर, हाई एनर्जी लेवल तो अनस्टेबल होता है, ग्राउंड स्टेट पर वापस आता है, हम भी तो कूद फान मचाने के बाद में थम जाते हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, वापस से अपनी उसी स्टेट पर आ जाते हैं कि कूदते फानते रहते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो सेम स्पीशीज के साथ भी वही है। तो जब क्या होता है, ये ग्राउंड स्टेट पर आता है, तो जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी थी, इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी ये क्या करता है, एमिट कर देता है, ठीक है? इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इसने एब्जॉर्ब करी थी वो एमिट कर देता है। अब ये जो एनर्जी एमिट की है यही हमें मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा। क्लियर है इतनी बात? यही हमें मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा। नाउ when white light is passed through a gas and the emergent beam of light that is allowed to fall on a photographic plate, spectrum obtained as absorption spectrum, ठीक है? तो this is the absorption spectrum. तो we have two spectras, emission and absorption spectra. Now अब जो हमें पढ़ना है वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज हाईली इंपॉर्टेंट। सी क्या होता है इसमें, द सोर्स ऑफ रेडिएशन हियर इज अ हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब, जिससे रेडिएशन निकल कर आता है वो हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब है, आप इसे जनरली समझ लो। डिस्चार्ज ट्यूब दैट कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल डिफरेंस इज allowed, okay, see here, to pass through a prism to cause dispersion. Okay, so in general हमारी conditions क्या हैं कि जो discharge tube में हाइड्रोजन गैस है it is at low pressure and high potential difference, ठीक है? ये conditions ध्यान में रखना। Now the bright light emitted from the discharge tube is passed through a prism to cause dispersion. The bright light emitted from the discharge tube is passed through a prism to cause dispersion. Emergent beam of light falls on a photographic plate and is recorded as the atomic spectrum of hydrogen. Now, the wavelength or wave number of various lines in the visible region can be expressed by the Rydberg equation, which is very very important. क्या है ये? See, wave number या 1 upon lambda is equal to Rydberg's constant आएगा 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. इस पे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं, ठीक है? अब RH is the Rydberg's constant for hydrogen atom, okay? N1 is the lower energy level and N2 is the higher energy level. Clear है इतनी बात? तो this formula is very very important. Note it down and we'll be solving numericals on the same, okay? चलो, Rydberg's constant value is not same for all the elements. For hydrogen like species, that's जैसे कि hydrogen like species मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम प्लस में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लिथियम 2 प्लस में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये सब क्या है, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज हैं। तो उनके लिए R की वैल्यू इज गिवन एज फॉलोज, ओके? चलो, now on the basis of this we have various series, that is Lyman series, Balmer series, Paschen, Brackett and P-Fund. ये सारी सीरीज हैं। इनका रीजन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन पूछा जाता है कि लाइमन सीरीज का रीजन क्या है, तो इट इज अल्ट्रा वायलेट। सिमिलरली बाल्मर सीरीज का रीजन है विजिबल, पैशन का न्यो इंफ्रारेड, ब्रैकेट इंफ्रारेड एंड पी-फंड फार इंफ्रारेड। इन जनरल इन तीनों में से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? कि लाइमन, बाल्मर, पैशन सीरीज, इन तीनों दे देंगे आपको क्वेश्चन में, आप बताएंगे कि किस रीजन में फॉल करते हैं, बताओ भाई। तो मैं बताना पड़ेगा अल्ट्रा वायलेट है या इंफ्रारेड है, फार इंफ्रारेड है, ठीक है? चलो, अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर लाइमन सीरीज बोला है, इन द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो n की वैल्यू, n1 की वैल्यू क्या लेंगे, 1, एंड n2 की वैल्यू कैसे स्टार्ट होगी, 2, 3, 4, 5। सिमिलरली बाल्मर सीरीज के लिए अगर बोला है तो n1 की वैल्यू स्टार्ट होगी 2 से एंड n2 की 3, 4, 5, 6। 3 से अगर n1 की वैल्यू स्टार्ट हो रही है पैशन सीरीज में तो n2 की वैल्यू 4 से स्टार्ट होगी। तो अंडरस्टैंड दिस, ओके? इसको बहुत ध्यान से हम यूज करेंगे। चलो, ऑलराइट, तो आई गेस यहां तक आपको क्लियर है। नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चंस, ओके? चलो, सो हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। चेक करो इसे, देखो, ट्राई करो, फिर आई विल हेल्प यू आउट। Question says the ratio of the energy of a photon of 2000 angstrom wavelength
radiation to that of 4000 angstrom wavelength radiation is. क्या पूछा है? रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी की रेशियो पूछी है, एनर्जी रेशियो इज आस्क्ड. ओके, वेवलेंथ गिवन है तो हमें कैलकुलेट करना है एनर्जी रेशियो. ट्राई इट. आई विल बी गिविंग यू 1 minute फॉर द सेम. 1 minute का भी नहीं है वैसे तो, लेकिन ले लो. Okay, so the time is up everyone. See, क्या बोला है? रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन बताना है ऑफ 2000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ एंड 4000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ. तो एनर्जी करस्पॉन्डिंग, एक एनर्जी इवन है, इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या है? 2000 है. ओके, 2000 है. 2000 एंगस्ट्रॉम इज द वेवलेंथ एंड दैट इज लैम्डा 1. एंड E2 के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा 2 इज इक्वल टू 4000 एंगस्ट्रॉम. राइट? ओके, सो नाउ हमने एक रिलेशन पढ़ा था, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, यही पढ़ा था. तो ये दोनों चीजें तो कांस्टेंट है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज नहीं होगी एक वेवलेंथ के लिए, और प्लैंक्स कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है. तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है. मतलब कि E1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by lambda 1 एंड E2 इज अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by lambda 2. ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाता है, रिलेशन आ जाता है. E1 by E2 ये रेशियो बतानी है हमें, तो इट विल बी lambda 2 4000 एंगस्ट्रॉम अपॉन 2000 एंगस्ट्रॉम. क्या मिला? 2. ओके, सो E1 by E2 की रेशियो है 2. यस, सो D इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर? इजी था. चलो ट्राई सॉल्विंग नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या है इसमें? द MRI body scanners used in the hospital operate with 400 megahertz radio frequency. ये इन्होंने फ्रीक्वेंसी दे दी है, कितनी है? 400 megahertz. ठीक है. The wavelength corresponding to this radio frequency is, wavelength बतानी है corresponding to this radio frequency. चलो try solving. easy है question. Okay, I guess this will be sufficient for 1 minute and 30 seconds. वैसे तो 1 मिनट का क्वेश्चन है, लेकिन आप सिंस यू आर इन द बिगनिंग फेज, टेक द टाइम, सॉल्व करो अच्छे से कैलकुलेट करके. ओके,
चलो, टाइम इज अप नाउ. सी, MRI body scanners used in hospital operate at this frequency. तो इसको पहले तो हम क्या कर लें कि कन्वर्ट कर ले, मेगा हर्ट्ज में है राइट, तो इसको मेगा हर्ट्ज से सिंपली हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 400 इंटू 10 to the power 6. मेगा स्टैंड्स फॉर 10 to the power 6 इंटू 10 to the power 6 हर्ट्ज. ठीक है, अब लैम्डा कितना गिवन है हमें, लैम्डा गिवन नहीं है, वी हैव टू कैलकुलेट. सो रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी अभी पढ़ा था, क्या था, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, और हमें लैम्डा फाइंड करना है तो लैम्डा विल बी इक्वल टू सी अपॉन फ्रीक्वेंसी. ठीक है, सी कितना होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. यस, एंड यहाँ पर 400 इंटू 10 टू द पावर 6. यस, यही आएगा. चलो, सो अपॉन सॉल्विंग दिस व्हाट डू वी गेट, ये अगेन 10 टू द पावर 8 ही है. ठीक है, 10 टू द पावर 8 से 10 टू द पावर 8 कैंसिल, वी गेट 3/4. 3/4 इज नथिंग बट 0.75 meters. So do we have an option? 0.75 meters is the correct answer. Easy था बहुत ज़्यादा. चलो, ठीक है. Now, okay. Next question we have. What is the wavelength of radiation with photon energy, which is the mean value of photon energy of radiations with wavelength lambda 1 and lambda 2? Mean value हमें बतानी है. See, what is the wavelength of radiation with photon energy, which is the mean value? What is the wavelength of the radiation with photon energy? Wordings में confuse मत होना. What is the wavelength of radiation with photon energy? एक energy है photon की, उसकी wavelength क्या है, which is the mean value of the photon energies of these two radiations having wavelengths lambda 1 and lambda 2. Okay, तो पहले तो हमें इनकी calculate करनी होगी mean value and then we'll calculate the energy. What is the wavelength of the radiation? Yes, चलो, try solving. चलो गाइस, टाइम इज ओवर. देखो, एनर्जी क्या होता है, hc अपॉन लैम्डा, यही होता है ना. और इन्होंने बोला है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन विद फोटोन एनर्जी विच इज द मीन वैल्यू. अब ये जो एनर्जी है इसकी भी कुछ मीन वैल्यू है, तो मीन वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, hc अपॉन लैम्डा 1 प्लस hc अपॉन लैम्डा 2 बाय 2, ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं ना मीन वैल्यू. इसको लैम्डा 3 मान लो. ठीक है, तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, hc कॉमन आ जाएगा. यस, hc विल बी कॉमन. सो व्हाट वील गेट फाइनली, चलो ट्राई. hc कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा ऑन द बोथ साइड्स, लाइक ऑन बोथ द साइड्स. hc यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ से अगर मैंने कॉमन निकाल लिया hc अपॉन लैम्डा 3 इज इक्वल टू hc, यहाँ से कॉमन निकाला 1 बाय लैम्डा 1 प्लस 1 बाय लैम्डा 2, ये अपॉन 2 है ना. ओके, तो ये और ये कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास 1 बाय लैम्डा 3 इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा 1 प्लस 1 बाय लैम्डा 2 1 बाय 2. यही आएगा या नहीं आएगा बताओ. So when we solve this, what do we get? 1 by lambda 3
इज इक्वल टू 1/2, लैम्डा 1 की वैल्यू क्या है 4000, 1/4000, लैम्डा 2 इज 6000, ठीक है। चलो, so we'll get equal to 4800 angstrom upon solving. Okay, D is the correct option. How are you going to proceed with this? See, 1 by lambda 3 is equal to 1/2. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 24, 1 2 3 4 5 6, 10 to the power 6 भी लिख सकते हो, एंड 6000 प्लस 4000 विल गिव अस 10000. 4 0 से 4 0 कैंसिल नीचे, तो क्या पता 2400, ठीक है। अब लैम्डा 3 अपॉन में है ना, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, 1 by lambda 3 is equal to 1 by 48,000, sorry 4800, तो lambda 3 is equal to 4800, उल्टा कर दो, क्लियर है। चलो, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। ओके, इसमें बोला है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दैट इज लैम्डा नॉट is for ejection of an electron is how much, 330 nanometers, which is 330 into 10 to the power minus 9 meters. Then work function for the photoelectric emission, work function बताना है क्या होगा। चलो, टाइम इज अप। सी, वर्क फंक्शन के लिए E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा होता है, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, और यहाँ पर थ्रेशोल्ड दिया है तो इसको भी थ्रेशोल्ड ले लेंगे। तो थ्रेशोल्ड को हम कैसे डिनोट करते हैं, W से एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। चलो, वैल्यूज पुट कर दो, वही बताना है ना वर्क फंक्शन ही। तो 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 विल बी व्हाट, H की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट C इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन लैम्डा नॉट क्या है 330 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, केवल 10 बचेगा, ठीक है। वो भी कैंसिल हो जाएगा, 311 टाइम्स, ओके, इसको इंटू 10 कर दिया तो वी गेट 666 एंड देन 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 है ना। कुछ गड़बड़ हुई है क्या, एक सेकेंड फिर से सॉल्व कर लेते हैं।
It will be 6.6 into 10 to the power minus 34. hc upon lambda naught है ना, 3 into 10 to the power 8, यही तो होगा. अपॉन लैम्डा नॉट की वैल्यू 330 into 10 to the power minus 9. ओके, गॉट इट. ये 9 ऊपर पहुंचेगा तो प्लस में पहुंचेगा ना, तो 9 और 8 कितना हो जाता है? 17. 17 हो जाएगा पावर में. तो अगर हमने ये 0 पॉइंट यहाँ से हटाया एंड यहाँ पर एक और 0 लगा दिया इंटू 10, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा? -9 + 2. चलो इसके साथ डील करेंगे. सबसे पहले देखो यहाँ पर, पहले हम पावर्स रिजॉल्व कर लेते हैं. ओके, तो दिस विल गिव अस 66 into 3 upon 33. ओके, इंटू 10 to the power minus 34 है, यहाँ पर हो जाएगा 10 to the power minus 9 इंटू 10 to the power 2. ओके, मैंने यहाँ से डेसिमल हटा दिया है, तो ये हमें -9 + 2 दे देगा 10 to the power 7 -7. अभी -7 ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा हमें? we'll be getting 6 into 10 to the power minus 34 plus 7. Yes? ऐसे कुछ आ रहा है? Do we have an option? minus 34 plus 7. अभी भी कुछ गड़बड़ है क्या? minus 34 10 to the power 8 भी तो था, plus 8. ओके, 15 and minus 34. 15 minus 34 we'll have to do. minus 19. joules. Do we have an option? Yes. C. चलो, next question. Kinetic energy of the electron emitted when the light of frequency कितना given है? 3.5 into 10 to the power 15 hertz falls on a beam on a metal surface having threshold frequency mu naught है 1.5 into 10 to the power 15 hertz. again इसकी kinetic energy बतानी है, Ke. easy again, h की वैल्यू गिवन है 6.6 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड. चलो बहुत इजी है. स्टार्ट.
Hurry up guys, time is about to get over. चलो लेट अस सॉल्व. बहुत इजी रिलेशन था. क्या पढ़ा था हमने? E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही था ना. तो यहीं से हमने वो एक्सप्रेशन डिराइव किया था, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के ई. ये आ गया काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. ओके, यहाँ से एच कॉमन ले लो कि तो क्या आ जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट. ये न्यू नीचे होगा यार, वेट. ओके, दिस इज काइनेटिक एनर्जी. तो H की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड गिवन है. न्यू कितना है 3.5 इंटू 10 टू द पावर 15 एंड न्यू नॉट है 1.5. यहीं पर नहीं कर सकते माइनस हम, इंटू 10 टू द पावर 15 है और ये हो जाएगा 2. डायरेक्ट मिल गया. इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 2 6 12, कैरी ऑन 1, 2 6 12, 13.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 प्लस 15 क्या मिलेगा, 9 आएगा पावर में. ओके ठीक है, पूरा ही करना पड़ेगा. वील गेट 10 टू द पावर माइनस 19 ओके इंटू 13.2. अब क्या ऐसा कोई ऑप्शन है 13.2? नहीं. 1.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इज नथिंग बट दिस ओनली. ठीक है, चलो. So this is the final answer. Take it down, then we'll move to the next question. Okay, another question we have here. Ultraviolet light of 6.2 electron volt falls on aluminium surface जिसका work function कितना है, 4.2 electron volts. Kinetic energy in joule of the fastest electron emitted. Kinetic energies हमें कैलकुलेट करनी है. Ultraviolet light of 6.2 electron volt falls on an aluminium surface. तो चलो try solving. यहाँ पर हमें एनर्जी गिवन है, ये एनर्जी, दिस इज E एंड ओके 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. काइनेटिक एनर्जी बतानी है. काइनेटिक एनर्जी क्या था, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट था ना. एच न्यू को आप ले लो रॉ एनर्जी माइनस दिस विल बी एक्सप्रेशन. कैलकुलेशन ही करना है, सॉल्व इट, जल्दी से कर लो. सी क्या होगा, ये एनर्जी कितनी गिवन है, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स माइनस 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्या मिलेगा हमें, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट. और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब हमें इन जूल्स चाहिए, या इन जूल्स चाहिए ना काइनेटिक एनर्जी, तो क्या करेंगे,
Yes. We'll multiply it with 1.6 into 10 to the power minus 19. Yes. 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19 joules. ये आ जाएगा. तो 3.2 into 10 to the power minus 19 joules. Do we have an option? 3.2 it is na, so we can take it as 3 into 10 to the power minus 19 joules. चलो. Next question. Value of Planck's constant given है. Velocity of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Just we know which value is closest to the wavelength of a quantum of light with frequency. Frequency दे दी है 8 into 10 to the power 15 second inverse. Lambda find करना है. Closest value. बहुत easy है. चलो जल्दी से कर लो. Nu is equal to C by lambda. Lambda is equal to C by nu. 3 into 10 to the power 8. 8 into 10 to the power 15. So we get, पहले पावर रिजॉल्व कर लो. 8 minus 15 कितना हो जाएगा? It will be 10 to the power minus 7. Yes, है ना? minus 7. और this will be 3 by 8 into 10 to the power minus 7. तो 0.3 is a 24. Then 6 left. 7 is a 56. 0.37. Or this can be taken as 3.7 into 10 to the power. लेफ्ट में आया है तो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा. राइट में लेके है ना, तो इट विल बी 3.7 into 10 to the power minus 8. That can be taken as 4 into 10 to the power minus 8 meters. क्लियर है? 3.75 आ रहा है, बट 4 इज द क्लोजेस्ट वैल्यू, सो वी विल टेक दैट. चलो नेक्स्ट है, फोटोन ऑफ विच लाइट हैज मैक्सिमम एनर्जी. अगेन आई टोल्ड यू कि VIB/GY/OR. इस तरफ जाएंगे तो लैम्डा विल इंक्रीज एंड एनर्जी विल डिक्रीज. क्या पूछा है? विच इट हैज मैक्सिमम एनर्जी, तो वॉयलेट C. ठीक है, violet color has minimum wavelength but maximum energy. Okay, चलो एक P by Q है related to the same topic. इसको देख लो, बहुत easy सा है. A particular station of All India Radio broadcasts on a frequency of
1368 kilohertz. The wavelength of electromagnetic radiation emitted by the transmitter is. Kilohertz it is, okay. So wavelength बतानी है, wavelength emitted by, okay, transmitter is. बहुत इजी है, देखो ऑप्शंस आपको गिवन है 219.3 मीटर्स, 219.2 मीटर्स, बहुत क्लोज ऑप्शंस हैं, 219.3 मीटर्स, 219.2 meters, then we have 219.2 meters and 21.92 centimeters. तो क्या डिफिकल्ट है अब इस क्वेश्चन में? कुछ डिफिकल्ट है? डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, वेवलेंथ बतानी है तो लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू. न्यू हमें गिवन है, किलो हर्ट्ज में है तो हम उसको हर्ट्ज में कर लेंगे, ठीक है. 3 × 10⁸ अपॉन 1368 किलो हर्ट्ज इट इज. हर्ट्ज में करने के लिए क्या हो जाएगा? इंटू 1000 या 10⁻3. So this will give us 219.3 meters as our answer. A option. Okay. तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, कुछ डिफिकल्ट था क्या? नहीं, राइट. तो इस सेक्शन में से दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट वी कैन गेट नाउ. So that is all for this lecture, and if you enjoyed, do like, share and subscribe to the channel, or press the bell icon and stay connected with us on Facebook, Instagram and Twitter. That's all guys. Thank you. See you in the next lecture. Bye bye.